we will work on a platform that is called Teletype. You can see Teletype. We have to log in through this way. login.teletype.team.login. So your team lead will provide you the username which we have to fill in this box. यहाँ पे username हमको डालना है and यहाँ password डालना है. Nazmeen. Yes, sir. Nazmeen. Yes, sir. That girl I was talking, she joined the meet. Yes, sir. She is there. Ask her. Preeti. Preeti Sharma. Yes. Preeti Sharma, are you there in this meet? Preeti Sharma. I think she haven't joined the call, Nazmeen. Please ask her because उसको समझ नहीं आएगा बाद में. Okay, sir. Okay. So, guys, in this box we have to fill that password. In this box we have to fill the username, and we have to click "I'm not a robot," and you will get a interface where you will see forms. Forms mean what? You will see forms in which we have to work. This kinds of forms. So you can see like health insurance claim form. So we will work on 2 forms. हम लोग 2 फॉर्म्स पे काम करेंगे. कौन कौन से फॉर्म पे काम करेंगे पहले थोड़ा समझ लेते हैं. पहले तो हम जिस के लिए काम करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उसको समझ लेते हैं. उस सॉफ्टवेयर का नाम होने वाला है टेलीटाइप. दैट सॉफ्टवेयर विल बी टेलीटाइप. उस वेबसाइट पे जाएंगे. सॉरी सर मुझे सीन नहीं हो रहा है. जिसको भी मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, आप मीटिंग को छोड़ के फिर से मीटिंग ज्वाइन कीजिए. दैट इज गुड. पीपल हु आर फेसिंग इश्यूज आल्सो, मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर आप लाइव सेशन में दिक्कत हो रहा है, आप मीटिंग को छोड़ के दोबारा से ज्वाइन करें. पीपल हु आर फेसिंग इशू कैन लीव दिस कॉल एंड ज्वाइन अगेन सो दैट उनको फिर से विजिबल हो जाएगा. एंड जिनको नेटवर्क की वजह से नहीं प्रॉब्लम हो रही है, नहीं दिख पा रहे, उनको हसीब जो है ही विल प्रोवाइड द वीडियोस. ओके, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओके, सो we will work for healthcare forms, and basically we will work for 2 forms. First is like healthcare financing administration, that is HCFA form, and second is uniform billing forms. So वो forms होते कैसे हैं, किस तरीके से होते हैं, तो you can see this form. This is that, like you can see there is a form and there are some boxes also. There are total number of 33 boxes in this particular form. You can see the number written 33. ये दिख रहा है सबको? 33 नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे. Yes, no? Can I get an answer? Yes, sir. Great. Yes, sir. Yes. So in this HCFA form we get 33 boxes. तो HCFA form दिखने में ऐसा होता है. We can see यहाँ पे अलग अलग sections है. इस तरीके से form होता है. Now the second form which is billing form. Billing form जो है uniform billing form, उसके अंदर 81 boxes होते हैं और उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है. वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है. This is that billing form. So billing, you guys know, bill का मतलब क्या होता है? जो भी वो सामान खरीदेगा वो उसकी क्वांटिटी, उसका नाम, नंबर, पैसा, अमाउंट लिखा होता है. This is what billing is. Billing ऐसे ही होती है. So this is a hospital. मैंने बताया था we will work for that health sector. तो health sector में हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का एड्रेस, फोन नंबर, नाम, नंबर, एड्रेस एंड ऑल, और जो भी उसने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, जो भी दवाइयां ली हैं, उसके चार्जेस, उसका नाम, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होंगी. हमको क्या करना है? व्हाट वी नीड टू डू, हमको उस फॉर्म में लॉगिन करना है. मैं दिखाता हूँ किस तरीके से लॉगिन करना है एंड ऑल. एक सेकेंड दीजिए प्लीज. Guys, people जिनका भी mic on है, please mute yourself. I don't want any disturbance in between. Okay.
So this is the way we need to log in this. ऐसे log in करना है and after login we have to click on accept. We will click on accept here. यहाँ पे हम लोग accept पे click करेंगे, ठीक है? And इस तरीके से आपको forms दिखाई देगा. I hope I am clear on this. सबको clear है forms कैसे show होंगे आप लोगों को? दिख रहा है screen? क्लियर है, दिख रहा है. Yes sir, clear है. And इसी form पे Yes, we have clear. to fill things. यहाँ there is one image, एक image यहाँ है and there is a text box. यहाँ एक text box है, right? And there are two options, accept and reject. और यहाँ एक timer चल रहा है 33 seconds का 30. तो ये total timer 60 seconds का होता है, मतलब 1 मिनट का समय मिलता है आपको इसको fill करने के लिए. और यहाँ कुछ questions लिखा होता है, आप ध्यान से देखो, लिखा है 24F charges line 4, right? So 24 का सेक्शन आपको मैंने बताया था ना, फॉर्म्स में अलग अलग सेक्शन होते हैं. देखो यहाँ 23 लिखा है, 23 24F चार्जेस, लाइन 4 ब्लैंक है तो आपको ब्लैंक ही उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ब्लैंक आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है. और जैसे ही आप ये डेटा कंप्लीट करोगे तो यू विल गेट एन ऑप्शन टू कंप्लीट. अगर आप कंप्लीट करोगे तो यू विल गेट अ न्यू फॉर्म. इधर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो यू विल गेट एन ऑप्शन टू कंप्लीट एंड लॉग आउट, ठीक है? So as I have logged in from किसी का मैंने लॉगिन किया है so that मैं आपको इंटरफेस दिखा पाऊँ. So I am not continuing, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आपको सैंपल्स के साथ आगे बढ़ के दिखाता हूँ. I'll click on complete and log out like this. Okay. Now I am logged out from the tool. So this is the way we will log into the tool. And now we are coming कि अब हमारे को questions क्या दिखाई देंगे, and then we will go to the live examples also. So this. So there are some shortcuts को remind में रखना है हम लोगों को. Accept we have to click enter, and if you have to complete accept remaining, मतलब एक साथ if we have to accept everything, अगर एक साथ सबको accept करना है तो we will click alt plus enter. For rejection we will click control plus enter, and for the reject remaining अगर एक साथ सबको reject करना है तो we will click on control plus shift plus enter. Clear on this? Now this page, this form on which we are working will have two types of forms. वहां पे दो तरीके के correction होंगे. As I told you, we are working for that correction part. So there will be two things: page level correction, which is called PLC, and field level correction, which is FLC. This is the interface of FLC, and this is the interface of PLC. So guys, can anyone unmute yourself and बता सकता है हम किस पे काम करेंगे? We will work on FLC or we will work on PLC? I think PLC. Great. So guys, we are going to work on PLC. हम FLC पे काम नहीं करेंगे. अगर आपको FLC, अगर आपने लॉगिन किया और आपको ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, so आप अपने टीम लीड को बताओगे कि सर वी आर गेटिंग द रॉन्ग फॉर्म. आपको FLC पे नहीं काम करना है. We have to work on पेज लेवल करेक्शन. इस कंप्लीट पेज को हमको करेक्ट करना है. और इस तरीके से अभी जो मैंने लॉगिन किया था, जस्ट यू गाइस हैव सीन दैट देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स आल्सो. यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स था. There is an option to reject, accept, and there are multiple questions here. So shortcuts यहाँ पे है to make our work easy so that हम जल्दी जल्दी काम कर पाए. And this is the way we will work, right? Now, what we will do there? So as I told, there will be a timer also. वहाँ corner में एक timer होगा, and that timer is for 1 minute. एक form पे जो अलग अलग questions दिखाई दे रहे हैं, देखो मैं थोड़ा zoom करता हूँ so that आप अच्छे से देख पाओ. ये देखो. Is it visible? So यहाँ पे आप देखिए एक ऐसा सेक्शन है और एक टेक्स्ट बॉक्स है. तो हर एक सेक्शन के लिए आपको 60 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पे मिलेगा. You will get time of 60 seconds to work on each section. Okay, so that आप चेक करो आपका काम क्या है. Your work is very easy. यहाँ इस बॉक्स में, in this box there is an image you guys can see. You have to match the data from this and this, and you have to fill in this. If there is no data filled, अगर वो खाली है, you have to fill nothing. You have to just accept the form. If the data is there, you have to check and verify the data is correct or not, and then you have to accept. And when we have to reject, I will make you understand कि कब हमको reject करना है. So now questions किस तरीके से आते हैं जरा समझिए. Like this. So in that text box you will find that आपको वहां पे ऑप्शन आएगा कि capture the billing provider information. You have to capture the information.
सो उस फॉर्म में यू गाइस कैन सी इस तरीके से इंफॉर्मेशन होगा. So this is billing provider organization name. This first line is the organization name. This is the address, PO Box 18402. This is the city, Las Vegas. This is the state name. In 2 alphabets, we will see the name, which is state name. And this is a complete section, a combination of zip code and zip extension. ये zip code और zip extension का complete combination है. तो आपको याद रखना है ये टोटल 9 अंक का होता है, 9 डिजिट्स का होगा, 8911. यू विल कैलकुलेट, ये 9 है टोटल, 1 2 3 4 9. तो जो स्टार्टिंग के 5 अंक होते हैं, स्टार्टिंग 5 डिजिट्स आर जिप कोड एंड रिमेनिंग 4 डिजिट आर जिप एक्सटेंशन. सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि लिखो तो यू विल मेंशन जिप कोड. अगर क्वेश्चन में पूछता है जिप एक्सटेंशन लिखो तो आप जिप एक्सटेंशन लिखोगे. और इन दिस सेक्शन ये क्वेश्चंस ब्लैक में लिखे हैं एंड आंसर्स ब्लू में लिखे हैं, सो दैट आप समझ पाओ कि कौन सा जिप कोड है और कौन सा जिप एक्सटेंशन है और कौन सा एनपीआई कोड है, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है गाइस, क्लियर ऑन दिस? यस नो? एक बार इनको रिपीट कर दीजिए, फरजीन को आई थिंक समझ नहीं आया, वो कह रही है कि एक दफा दोबारा समझा दें. ओके, देखो फरजीन आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. यस सर. सो आप हिंदी में कंफर्टेबल हो? मैं दोनों में हूँ, नो प्रॉब्लम. ठीक है, देखो मैं बताता हूँ. ये जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये बॉक्स, राइट? सो जब फॉर्म आपके सामने आएगा तो फॉर्म इस तरीके से आएगा, ये रहेगा फॉर्म का वे ऐसा होगा. और वो जो बॉक्स है ना वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा. ठीक है, वो बॉक्स आपको यहाँ पे इस सेक्शन पे दिखाई देगा जो नीचे है. ठीक है, और यहाँ पे वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे. किस तरीके से दिखाई देगा देखो, इस तरीके से. सो ये बॉक्स है और नीचे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि बिलिंग प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है. तो आपको ये लिखना है, ऊपर वाली लाइन साउथ वेस्ट मेडिकल एसोसिएट्स. ये नहीं कि आपको नीचे वाला लिखना है, पूरा लिखना है. ये पूरा नहीं है, नाम ये है. आपसे पूछेगा कि उसका एड्रेस क्या है. यहाँ पे लिखा है ना 33 एड्रेस, तो आपको ध्यान देना है 33 बॉक्स यहाँ पे है, उसका एड्रेस ये है, तो ये एड्रेस आपको वहां पे फिल करना है. फिर आपसे पूछेगा 33 सिटी, मतलब 33 बॉक्स में जाओ, सिटी का नाम, तो सिटी का नाम कहाँ होगा? स्टार्टिंग के ये 2 सिटीज होते हैं. ये 2 डिजिट का जो होता है ना ये स्टेट होता है, और ये पूरा जो होता है ना वो जिप कोड और जिप एक्सटेंशन का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे आगे के 5 डिजिट जो होते हैं वो हमारा जिप कोड होता है और पीछे का जो जिप एक्सटेंशन होता है 4 अंक का, वो जिप एक्सटेंशन होता है. ठीक है, समझ गए आप? यस नो? यस सर. कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, मैं हेल्प करूंगा. ठीक है, ओके सर. चलो, तो उसी प्रकार से विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस. अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे हमको फॉर्म के अकॉर्डिंग. जैसा मैंने आपको ये फॉर्म दिखाया था ना, ये देखो. सो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखो सेक्शन बना है 1A, राइट? फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6. सबको विजिबल है मैं किस नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ? यस सर. यस, विजिबल है. ओके, तो गाइस वहां पे जो फॉर्म हम पीएलसी में जो पेज लेवल करेक्शन करेंगे ना, इसी इंफॉर्मेशन को करेंगे और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा. तो जैसे अभी मैं एक पेज दिखा रहा था ना आपको, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे कैप्चर द डायग्नोसिस कोड आईसीडी इंडिकेटर. क्या लिखा है? आईसीडी इंडिकेटर लिखा है ना. तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा? तो जब आप फॉर्म चेक करोगे ना तो सॉरी, तो इस फॉर्म में सेक्शन होता है अलग अलग. ये देखो, तो यहाँ आप देख रहे हो आईसीडी इंडिकेटर लिखा है 21 सेक्शन पे. ये इज इट विजिबल? Yes, sir. यस सर. सो दिस इज हाउ आपको फॉर्म में वहां क्वेश्चन पूछेगा. और आपको वो जो टेक्स्ट बॉक्स दिखा रहा था ना मैं कॉर्नर में, उस टेक्स्ट बॉक्स में ये इमेज आएगा और यहाँ आईसीडी इंडिकेटर का जो नंबर है वो नंबर लिखा होगा. आपको बस चेक करना है कि उस टेक्स्ट बॉक्स में वो नंबर सही है कि नहीं. तो पहले से 0 लिखा है तो सही है, अगर नहीं लिखा है तो आप वहां पे 0 डाल के एक्सेप्ट कर दोगे. ठीक है Okay. गाइस? यस नो? Yes, sir. यस सर. तो Yes, जो sir. फॉर्म आएगा ना एचएस, जो मैं आपको फॉर्म बता रहा था,
वो इसी तरीके से फॉर्म आएगा। तो आपको अपने दिमाग में वो कंप्लीट 33 बॉक्सेस को रख लेना है कि कौन सा बॉक्स कहाँ होता है। जैसे बिलिंग प्रोवाइडर एड्रेस इंफॉर्मेशन पूछेगा तो वो 33 बॉक्स में होता है। सर्विस फैसिलिटी लोकेशन 32 में, 31 में। जब आप काम करोगे तो इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जब आप काम करोगे तो वो आपके फॉर्म्स आपके सामने विजिबल होगा और उस फॉर्म्स को आप देख पाओगे और वो देख के आपको बस वैलिडेट करना है। आपको बस देखो इस तरीके से फॉर्म्स को आपको शो करेगा, कंप्लीट पेज आपको दिखाई देगा, राइट। ऐसे इस तरीके से आपको फॉर्म शो होगा। आपको यहाँ क्वेश्चन देखना है, इस बॉक्स को देखना है क्या पूछ रहा है, यहाँ से मैच करना है। अगर यहाँ डेटा सही फिल है तो ओके एक्सेप्ट, अदरवाइज उसको अगर कोई ब्लैंक डेटा है तो आपको खाली छोड़ना है और एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। क्लियर हूं मैं? यस सर। यस सर। चलो यस Now, सर। मैंने बताया था कि वी विल वर्क ऑन 2 फॉर्म्स, हम 2 फॉर्म्स में काम करेंगे। तो एक तो हमारा फॉर्म था HCFA फॉर्म जो मैंने आपको समझाया, उसमें 33 बॉक्सेस होते हैं, उनका आंसर हमको देख के करना है। नाउ जो दूसरा फॉर्म होता है दैट इज बिलिंग फॉर्म विच इज कॉल्ड एज UB04 और उसके अंदर 81 बॉक्सेस होते हैं। मैं उसको दिखा रहा हूं आपको, ये तो ये देखो आप, आई होप सबको सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जूम करता हूं थोड़ा सा। नाउ यू कैन सी देयर इज अ नंबर 1 1 2 3 3A B C इस तरीके से है ना, 4 5 6 7 ऐसे कर करके अब 9 में तो 9A 9B 9C 9D 9E यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हैं ना, डिफरेंट 18 19 20 21 ऐसे करके। यस तो सर। टोटल 81 बॉक्सेस होंगे। तो आपको इस फॉर्म के भी ध्यान में रखना है कि कौन सा चीज कहाँ होता है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। एंड दीज आर द कोड्स, ये है कोड्स, उनके कोड्स यहाँ पे लिखे गए, राइट। ये देखो प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस सेक्शन 1 में मिलेगा, पे टू नेम एंड एड्रेस सेक्शन 2 में मिलेगा। 3A इज पेशेंट कंट्रोल नंबर, 3B इज मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, 4 इज टाइप ऑफ बिल, 5 इज फेडरल टैक्स नंबर, 6 इज स्टेटमेंट कवर पीरियड। सो आपको काम करते करते you guys will remember also and in the starting phase it will take some time but आपको वो मिल जाएगा। आपको फिर यहाँ भी सेम ही काम करना है। आपको क्या करना है, बस उस डेटा को वेरीफाई करना है, वो नंबर वहां पे सही से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, एंड आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। नाउ वी विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ, वी विल गिव यू दिस पीडीएफ सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या आंसर होता है। देखो अब मैं आता हूँ, थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले रहे थे थोड़ा सा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कैप्चर द इंश्योरेंस प्लान इंडिकेशन फ्रॉम द बिलो शोन इमेज। सो दिस इमेज विल पॉप अप और यहाँ पे किस पे क्या लिखा है, तो मेडिकेयर इट्स एम्प्टी, खाली है ना बिल्कुल गाइस, यस नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ देखो, यहाँ नीचे आंसर भी खाली है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेडिकेयर तो इट इज ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है तो वहां पे भी आप ब्लैंक छोड़ के एक्सेप्ट करोगे। मेडिकेड वहां, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक छोड़ के एक्सेप्ट करोगे, है ना। ट्राइकेयर ब्लैंक है, ब्लैंक छोड़ के एक्सेप्ट करोगे। और अगर पूछेगा आपसे अदर्स, तो अदर्स में आप देखो देयर इज अ एक्स मार्क, वहां पे मार्क्ड है ना एक्स, तो यू विल क्लिक ऑन एक्स, चेक करोगे वहां एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, आप वेरीफाई करोगे, एक्स डालोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। सो इस तरीके से कंप्लीट आपको सेट्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको ये सब चीजों को करना है, भरना है, राइट। क्लियर हूं मैं? इस तरीके से देखो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इंफॉर्मेशन। नाउ अब एक्सेप्ट किसको करना है वो क्लियर है। नाउ गाइस हमको रिजेक्ट किसको करना है इसको समझते हैं, किस किस फॉर्म्स को वी हैव टू रिजेक्ट। सो सबसे पहले तो ये ध्यान दो आप कि इफ इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में इफ यू गेट अ स्ट्राइक मार्क, अगर कुछ ऐसा कटा हुआ है, कुछ क्रॉस है, आपको सीधा उसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। दूसरा कब रिजेक्ट करना है, आपके सामने फॉर्म है HCFA फॉर्म एंड क्वेश्चन जो है वो बिलिंग फॉर्म से पूछ रहा है। आपके पास तो 33 सेक्शन है इसमें, और हो सकता है कि आपको फॉर्म दिख रहा हो
ये इंश्योरेंस फॉर्म दिख रहा हो HCFA और आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हो बिलिंग फॉर्म का, तो आप रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपके सामने दिख रहा है आपको बिलिंग फॉर्म और क्वेश्चंस पूछा जा रहा है हेल्थ फॉर्म, तो आप उसको भी रिजेक्ट कर दोगे। क्लियर हूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक केस तो ये हो गया कि व्हेन यू विल सी अ फॉर्म HCFA फॉर्म एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम UB बिलिंग फॉर्म, यू हैव टू रिजेक्ट। दूसरा केस इज लाइक यू सी अ फॉर्म ऑफ बिलिंग फॉर्म एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम HCFA फॉर्म, यू विल रिजेक्ट। थर्ड इज लाइक इफ यू विल गेट एनी स्ट्राइक मार्क, कुछ ऐसा क्रॉस दिखाई दे रहा है, यू विल रिजेक्ट। एंड अदर देन दैट, उसके अलावा अगर कोई फॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं, अर्लियर आई सेड लाइक वी विल वर्क ऑन ओनली 2 फॉर्म्स, HCFA एंड UB बिलिंग फॉर्म। उसके अलावा अगर कुछ आपको ऐसा सैंपल थर्ड कुछ तीसरा फॉर्म दिखाई दे रहा है तो यू विल रिजेक्ट। ठीक है, Okay, got it. गॉट इट, ग्रेट। Yes, sir. सो नाउ आई एम गोइंग इन लाइव। मैं लाइव जाता हूँ, आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अच्छा, देयर इज सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो। ये देखो कौन है भाई, स्क्रीन को क्लेंस करें, फिर वो दिला देता हूँ। देखो सब इंस्ट्रक्शंस क्या है। सबसे पहले तो व्हेन वी विल वर्क, हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसका कैप्स लॉक ऑन करके काम करेंगे, मतलब सारे इंफॉर्मेशन को कैपिटल लेटर्स में ही डालेंगे। ठीक है, ओके उसके बाद जो एक्सेप्टेबल लेटर्स है, जैसे बिलिंग फॉर्म में वहां पे आप क्या करते हैं ना, क्रॉस YNWI, इनके अलावा कोई भी कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ICD इंडिकेटर में 0, 1, 9, 10 के अलावा कोई भी नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लो ICD इंडिकेटर में 3 लिखा है तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ओके, उसके बाद बिलिंग फॉर्म में जो हमारा बॉक्स नंबर 67 होगा, दैट इज POA इंडिकेटर वैल्यू, वहां पे YNWU एंड 1 के अलावा किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो सिग्नेचर का पार्ट होगा, कहीं कहीं फॉर्म्स में आपको सिग्नेचर भी दिखाई देगा, तो अगर हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन है तो वी विल प्रेस H, अगर प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है तो वी विल प्रेस P, और अगर दोनों है, हैंड रिटन प्रिंटेड दोनों है, तो वी विल प्रेस B। ओके, ओके ये कुछ खास इंस्ट्रक्शंस है, इसको ध्यान दे देना आप। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 है ना, ये पांचों को एकदम अपने कैंडिडेट्स एजेंट्स को अच्छे से बता देना। Yes, ठीक है, जी जी इंस्ट्रक्शंस मुझे शेयर भी कर दीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट PDF फाइल शेयर विथ यू, डोंट वरी। ओके देखो इस तरीके से ये इसमें हर इंफॉर्मेशन लिखा है आपके समझ सूझबूझ के लिए, सो दैट आपके एजेंट्स कोई गलती ना करे, उसको पूरे अच्छे से PDF को देखे। नाउ अब मैं लाइव जाता हूँ, थोड़ा सा लाइव इनको दिखाता हूँ कि काम करना कैसे। ठीक है, ओके। सो गाइस देखिए, अब हम लोग एकदम स्टार्टिंग से समझने जा रहे हैं हम लोग काम कैसे करेंगे। इसको समझिए, कोई भी एजेंट पैन, मतलब मैं बोल रहा हूँ ग्लोबली कहीं से भी काम कर रहा हो, योर टीम लीड विल क्रिएट वन ग्रुप। एक आपका टीम लीड आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप में 1 सेकेंड गाइस, Excuse me, sir. हाँ यस, सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस क्लास की कि नहीं? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है सादिया, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है जी, ओके जी, ओके, थैंक यू। सादिया यू आर नॉट लाइक अटेंटिव इन दिस मीट। आप अटेंटिव नहीं हो, व्हाई यू नीड रिकॉर्डिंग गाइस? नहीं, अटेंटिव हूँ मैं, क्लास देख रही हूँ, स्टार्ट में मुझसे मिस हो गई है। और दूसरा मसला ये है कि अगर हमें दरमियान में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अगर वीडियो हो तो हम उस उसके साथ दरमियान हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। मैं पर्सनली रहूंगा। ओके, ओके, थैंक यू जी। तो ये ध्यान दीजिए, आपके टीम लीड आपका एक ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, एंड इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट ही विल डू, वो अलग अलग लिंक शेयर करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज वर्किंग लिंक जिस पे हम काम करते हैं। यू विल क्लिक ऑन दिस, और आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। दूसरा, वो उसमें क्या ऐड करेगा, एक वो आपके लिए एक मीट लिंक डालेगा, सो दैट आपको कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत होता है, यू विल ज्वाइन दिस मीट, आप उस मीट को ज्वाइन कीजिएगा, एंड वो भी आपका टीम लीड भी उस मीट पे आएगा और आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। ठीक है, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो डालेगा आपका डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड। ये 2 ट्रैकर रहेंगे फॉर्म्स, मैं खोल के दिखा देता हूँ। एक तो डेली अटेंडेंस ट्रैकर और दूसरा टाइम स्नैप ट्रैकर। सो
करना क्या है समझो इसको। जब भी आप पहली बार काम करने के लिए आ रहे हो, मींस व्हेन यू आर गोइंग टू लॉग इन, जब आप इस टूल पे लॉग इन करने जा रहे हो, टूल पे लॉग इन करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलना है। यू हैव टू क्लिक ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड PLC QC 2, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। तो आपके सामने ये एक फॉर्म आएगा। यू हैव टू पुट योर ईमेल ID, योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब यू हैव टू फिल दिस इंफॉर्मेशन। आपको डेट सेलेक्ट करना है, जिस टाइम पे आप लॉग इन कर रहे हो वो टाइमिंग आपको मेंशन करना है। यू हैव टू सेलेक्ट योर टीम लीड, आपका टीम लीडर का जो नाम है, यू हैव टू सेलेक्ट द टीम लीड नेम। और आपको जो हम ID देंगे, ID मींस देखो इस तरीके से हम आपको IDs देंगे लाइक दिस। ये आपकी ID होने वाली है। ईच एंड एवरी कैंडिडेट हैव अ यूनिक ID, तो आपको वो ID वहां पे मेंशन करना है। एंड मेंशन करने के बाद यू हैव टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो इस पे? ओके, सो Yes, sir. दिस इज हाउ यू गाइस विल मार्क योर अटेंडेंस। इस तरीके से आप अपना अटेंडेंस मार्क करोगे। उसके बाद आप जैसे ही 1 घंटा काम करोगे, इन एंड एवरी आवर यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है अपने हिस्ट्री पेज का, और ये टाइम स्नैप ट्रैकर आवरली स्क्रीनशॉट है। आपको उसको हर घंटे में ये इंफॉर्मेशन फिल करके और स्क्रीनशॉट के साथ आपको हर घंटे अपलोड कर देना है। ठीक है, किस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है मैं समझाता हूं। देखो, आप लॉगिन करोगे, मान के चलता हूं कि आपका 1 घंटा हो गया। ठीक है, आपने काम किया था 5:50 को, और अभी टाइमिंग हो रहा है 6:50, तो आपने 1 घंटा अभी काम किया। तो आप जाओगे, यू विल क्लिक ऑन दिस कॉर्नर सेक्शन, प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल यू विल क्लिक ऑन द हिस्ट्री सेक्शन। तो आपकी हिस्ट्री शो हो जाएगी। हिस्ट्री मतलब कितने देर आपने काम किया है, क्या काम किया है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड है। आप इस पेज का कंप्लीट स्क्रीनशॉट लोगे। इस तरीके से यू विल टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, 1 घंटा आप काम कर लिया है आपने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यू विल गो ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओगे, यू विल क्लिक ऑन टाइम स्नैप ट्रैकर। तो ये पेज ओपन होगा, आप इसको इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे। जो भी देखो, अपना नाम, यू विल सेलेक्ट योर नेम, योर लॉगिन ID, योर मोबाइल नंबर, योर टीम लीड नेम, किस टाइमिंग पे आप डेटा कैप्चर कर रहे हो, एंड यू विल अपलोड दैट स्क्रीनशॉट। आप वो स्क्रीनशॉट जहां भी आपने सेव किया होगा, आप जाओगे, जाने के बाद यू विल अपलोड दैट स्क्रीनशॉट। आप वहां पे स्क्रीनशॉट को अपलोड करोगे। इस तरीके से यू विल सेलेक्ट दैट, आप उसको सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट करोगे, एंड यू विल सबमिट। सो वो हमारे पास डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। तो हर घंटे आपको उसको सबमिट कर देना है। ठीक है गाइस, क्लियर हूं इस पे? यस सर। सर डेली कितने घंटे काम करना? देखो, बेयर मिनिमम यू हैव टू वर्क फॉर 6 आवर्स। 6 घंटे से कम कोई काम नहीं करेगा, और एक साथ नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लगातार 6 घंटे काम कर रहे हो। माइट बी सम आर हाउसवाइफ, सम माइट बी स्टूडेंट्स, सम माइट बी वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आपके टीम लीड से आप कोऑर्डिनेट करना अपने अकॉर्डिंगली। आप 2 घंटा काम करना चाहते हो, सुबह में 2 घंटा कर लो, शाम में 2 घंटा कर लो, दोपहर में 2 घंटा कर लो। आप एक साथ 6 घंटा करना चाहते हो, एक साथ 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा कर लो। जितना भी करना चाहते हो आप एक साथ कर लो। ठीक है, सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। सर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि 1 घंटे के अंदर सपोज हमने 15 जो है वो फिलअप किए हैं, या 50 फिलअप किए हैं, तो नेक्स्ट आवर में हम सेपरेट करेंगे ना? मतलब कि हम ये काउंट नहीं कर रहे कि कितने हैं, हमने 1 घंटा उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, या टास्क भी काउंट करेंगे? मैं आपको कुछ टास्क नहीं काउंट करना, वो सब आपकी हिस्ट्री में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा जो भी आप काम करोगे। ठीक है, उसके लिए आप डोंट वरी। और दूसरी बात, मेरे कहने का मतलब है 1 घंटे से कम कोई भी लॉगिन नहीं करेगा। मतलब क्या है ये 1 घंटे से कम? कि अगर आप काम करने बैठ रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि अब आपको कोई दूसरा काम आ गया, आपको खाना बनाना है, आपको कॉलेज जाना है, आपको एग्जाम देना है। डोंट लॉग इन। आप देखो, इस बंदे ने, मतलब ये एक ट्रेनिंग आईडी है, मैंने ट्रेनिंग पर्पज से ली है, तो इसने 16 मिनट, 1 मिनट, तो ये हम देखेंगे, आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। ठीक है,
एक घंटे के लिए हमने लाजमी लॉगिन होना है, 1 घंटे जितना काम करना है वो आप देखेंगे, लेकिन हमें 1 घंटे के लिए लॉगिन लाजमी होना है। हाँ, 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे के लिए अगर एक साथ आप काम करने बैठ रहे हो, हमने आपको एक दिन में 6 घंटे का टारगेट है, ज्यादा करो, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जितना कर सकते हो करो। बट अगर आप काम करने बैठ रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि 15 मिनट काम किया, हट गए, फिर 15 मिनट आए, फिर हट गए, फिर 10 मिनट के लिए आए, फिर हट गए। एक बार आपने लॉग इन किया तो लॉग आउट कम से कम 1 घंटे के बाद ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है? ओके ओके। अब हम क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड कर पाएंगे, अगर जैसे इस बंदे की देखो 16 मिनट है तो ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, मैं ये ट्रेनिंग के लिए आईडी यूज करता हूं, तो ये मेरी लॉगिन आवर्स है, मैं इतने देर लोगों को लॉगिन करके समझाता हूं। ठीक है? तो आपने जब भी लॉगिन करना है तो आपका डेटा 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम लॉगिन करो। ये नहीं कि आपने काम है कुछ, आपने खाना बनाना, आपने पतीला चढ़ा दिया गैस पे, ये कोई टाइमिंग का बाउंडेशन नहीं है तो आप लॉगिन कर रहे हो, फिर आपने लॉग आउट कर लिया, फिर 15 मिनट के बाद लॉगिन कर लिया, वैसा नहीं होगा। मिनिमम 1 घंटा तो लगातार करना ही है। मैक्सिमम आप 6 घंटे करो, 7 घंटे करो, 8 घंटे करो, जितना लगातार करना है लगातार करो। रुक रुक के भी कर रहे हो तो 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का शेड्यूल बना के करो। ठीक है? सॉरी सर, क्या हर घंटे का स्क्रीनशॉट देना लाजमी है? अगर हम कंटिन्यूअसली 6 घंटे भर कर रहे हैं तो हर घंटे का स्क्रीनशॉट देना है? हाँ जी, हर घंटे का स्क्रीनशॉट देना लाजमी है। वो इसलिए भी लाजमी है क्योंकि हमको पता चलेगा आप कितने घंटे कर रहे हो, और इस रिपोर्ट से वहां पे हम इंफॉर्मेशन चेक कर लेंगे। उसी ट्रैकर से हमको पता चलेगा कि आप काम आपने किया भी है या नहीं किया है। ठीक है? जैसे मान लो कई एजेंट बोले 6 घंटा काम, और उन्होंने 6 घंटा काम तो किया है बट हर घंटे वहां पे स्क्रीनशॉट डाला नहीं है, तो हम पकड़ लेंगे वहां पे। ठीक है? तो हम चेक करते रहते हैं। ठीक है? ओके ओके। ओके दूसरी चीज, one by one guys please, nobody will change your password। आपको जो भी हम आईडी और पासवर्ड देंगे आपको उसको बदलना नहीं है, गलती से भी नहीं बदलना है। ठीक है? ओके ओके। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, nobody will log in multiple devices। एक आईडी और पासवर्ड मल्टीपल डिवाइस में कोई लॉगिन नहीं करेगा, नहीं तो आपकी आईडी क्रैश हो जाएगी। और अगर आपकी आईडी क्रैश होती है तो आपके टीम लीड को उसका जुर्माना, उसका फाइन हमको देना पड़ेगा। कोई भी मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन नहीं करेगा एक साथ ही। ऐसा नहीं कि लैपटॉप में लगा दिया, घर के किसी और बच्चों को पकड़ा दिया और फोन में पकड़ा दिया। कोई फोन से कर रहा है, कोई लैपटॉप से कर रहा है, आप करोगे वो आपको एरर शो होगा। किस तरीके से शो होता है मैं बता देता हूं, आप देखो। इस तरीके से आपकी आईडी में एरर आ जाएगा और वो आईडी क्रैश हो जाएगी। एक सेकेंड दो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, आपने मल्टीपल लॉगिन जहां किया आपकी आईडी क्रैश हो जाएगी और वो लॉगिन नहीं होगा। फिर आपके टीम लीड को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। उससे अच्छा है दैट पीपल डोंट लॉग इन मल्टीपल डिवाइसेस। आप लॉगिन ना करें। आप जब आपका काम खत्म हो जाए आप प्रॉपरली उसको लॉग आउट करें टूल को। ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, काइंडली आप हमने आ रहा हूँ गाइस लाइट ऑफ हो गई है, कोई इशू हो गया तो हम सिस्टम वन बाय वन बोले, इकरा वन बाय वन बोले। गाइस हैव अ मोमेंट, एक चीज और समझो। मैं आ रहा हूँ, आपके डाउट्स लूंगा, पहले मैं समझा दूं प्रोसेस क्या है, काम क्या है। नाउ आप यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन फील्ड एंट्री, नो रिजल्ट एट दिस टाइम, प्लीज ट्राई टू रिफ्रेश इन अ फ्यू मिनट्स। देखो अभी क्रिसमस का समय चल रहा है और मैंने बताया दैट दिस इज अ यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट। तो फॉर्म्स अभी हमारे को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्म्स आया था, तो जब भी आपको फॉर्म्स नहीं आएंगे यू विल गेट दिस पेज, आपको ये पेज शो होगा। तो यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश टू गेट अ न्यू फॉर्म। तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो फॉर्म्स आएगा। अगर आपको थोड़ी देर 5-10 मिनट रुक के कर रहे हो, आपको फॉर्म्स नहीं आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टीम लीड को इन्फॉर्म कर दें कि हाँ मुझको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये रिफ्रेश आ रहा है। हम आपके टीम लीड को कोऑर्डिनेट करेंगे क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है? दूसरी चीज, मान लो आप कभी काम कर रहे हो सॉरी, और काम करते टाइम आपके सामने फॉर्म आ गया इस तरीके से, और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा है टोटल 28 टोटल चार्जेस, क्या फिल करना है, ये सही लिखा है गलत लिखा है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, अपने टीम लीड को मेंशन कर दो। आपको कंफ्यूजन होगा, आपका टीम लीड आपको बताएगा कि वहां पे क्या इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है।
ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे चार्जेस लिखा है ना 15000, तो यहाँ पे है 15000। यहाँ पे एक गलती है। गलती क्या है कि ये जब भी अमाउंट हम लिखते हैं तो वहां पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए था 150.00 और तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो किसी का ये डाउट था, उसने यहाँ पे डाला था। नाउ थोड़ा सा ये देखो कि मैं दिखाता हूं आपको। प्रीति शर्मा, can you mute yourself? Yes. Good. Okay. So now is it visible, guys? Is it visible to everyone? दिखाई दे रहा है? चलो, तो देखो कुछ खास चीजों का हमको ध्यान रखना है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके टीम लीड को दे दूंगा, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखो, जब भी हमको कोई अमाउंट दिखता है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं बताता हूं। अभी आप देखो यहाँ पे एक था ना, यहाँ पे अमाउंट लिखना था, टोटल चार्जेस, राइट? और यहाँ पे आप फोकस कीजिए, दैट इज 150, एक लाइन है बीच में और 00। मैंने बोला कि यहाँ पे 150 और 0.00 होगा। वो क्यों होगा? देखो, हम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अगर आपके सामने कोई भी डिजिट ऐसा लिखा है अमाउंट, दिस इज द अमाउंट सेक्शन 952/00, आपने पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। आपने कोई अंक लिखा है 952/0, पीछे से 1 0 अपने से लगाओ, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो ये पूरा फॉर्मेट बना दिया है, कैसे क्या करना है। फॉर्म में क्या लिखा रहेगा, आपको क्या एंटर करना है। फॉर्म में क्या लिखा रहेगा, आपको क्या एंटर करना है। फॉर्म में कैसे रहेगा, आपको कैसे एंटर करना है। ठीक है हसीब? ठीक है, यस सर। जी सर, ठीक है। तो उसी प्रकार से अमाउंट का सेक्शन होगा, एड्रेस से होगा, और आपने क्या एंटर करना है। हमने आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन डाल दिया कि अगर आपको इस तरीके से एड्रेस आता है और क्वेश्चन आपसे पूछेगा फैसिलिटी नेम, फैसिलिटी एड्रेस, फैसिलिटी सिटी, स्टेट, जिप कोड, तो इस तरीके से इस डेटा से यहाँ पे इस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन को फेच करना है, फेच करके फिल करना है। तो हमने सब बना दिया है, सेक्शंस आपको शेयर कर देंगे। साइन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे साइन का कॉन्सेप्ट डालना है, टाइमिंग कैसे फिल करना है, टाइमिंग का कॉन्सेप्ट, एड्रेस का कॉन्सेप्ट, अमाउंट का कॉन्सेप्ट, सारा का सारा इंफॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड यू। एंड जब भी फॉर्म्स नहीं आएंगे वी विल क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो मैंने बताया वी आर गोइंग विद क्रिसमस था, तो क्रिसमस की वजह से देयर आर लेस फॉर्म्स। अभी Q0 है, फॉर्म्स की संख्या बढ़ेगी, वो हम आपके टीम लीड को गाइड कर देंगे, फॉर्म्स कैसे आते हैं, कब आते हैं एंड ऑल। नाउ आपको जब फॉर्म्स नहीं आएंगे, आप सीधा इस टैब को बंद नहीं करोगे, यू विल नॉट क्लोज दिस टैब। आप प्रॉपर ये फॉर्म कोने पे जाओगे, प्रोफाइल सेक्शन पे, यू विल क्लिक ऑन लॉग आउट। आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे तभी टूल से बाहर जाओगे, राइट? आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। मैं क्लियर हूं इस पे। नाउ गाइस, नाउ आई एम कमिंग टू